Good morning, children. Today we are going to study the third lesson of class 8th science, that is microorganisms. What are microorganisms? The organisms which we cannot see by our naked eyes, ऐसे organisms जो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, that can be seen only with the help of microorganisms, with the help of microscope. Such organisms are called as microorganisms. The study of this microorganism is called as a microbiology. The study of these microorganisms is called as microbiology. Now, where do these microorganisms find? What is the habitat of these microorganisms? These microorganisms are found everywhere on the earth. Everywhere means in the depth of the sea, as well as in the polar region, in the hot desert region, in the cold region, in the water, as well as in the air. Everywhere these microorganisms are present. These microorganisms, it has a very hard covering. इसका जो बाहर का आवरण होता है, बाहर का लेयर जो होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है. इस कारण अगर वो कहीं पर गिर जाता है, मतलब पड़ा रहता है, अगर उसे कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है. फेवरेबल कंडीशन इन अ सेंस मीन्स व्हाट? द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, द प्रॉपर टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ फूड, उसे खाने के लिए भरपूर जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल हो, मॉइस्ट टेम्परेचर हो, और उसे अच्छा एटमॉस्फेयर अगर मिल रहा है, सो दैट इज़ द फेवरेबल कंडीशन. तो फेवरेबल कंडीशन में वो तुरंत रिप्रोड्यूस होते हैं. पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर वो डेजर्ट में पड़े हैं, यानी डेजर्ट में अगर वो है, तो उस डेजर्ट में वो बहुत दिनों तक रहेंगे. दे विल नॉट रिप्रोड्यूस नॉर दे विल डाई व्हेन दे विल गेट अ फेवरेबल कंडीशन. जब वहाँ पर बारिश होगी या जब उसे कुछ खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट शुरू होगा, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन शुरू होगा, एंड दैट इज़ द हैबिटेट. इट कैन लिव इन एनी टाइप ऑफ हैबिटेट, इवन इन द कोल्ड विंटर, इवन इन द हॉट समर, these can be seen. So, we will study in this lesson the major groups of microorganisms. The major groups. The microorganisms are divided into 5 major groups. That is bacteria, fungi, protozoa, algae and viruses. ये 5 ग्रुप्स है जिसमें ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिवाइड हुए हैं. हमें आज इस लेसन में ये 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है. वी हैव टू स्टडी इन दिस लेसन अबाउट बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, algae as well as viruses. Now let us study the first group, that is bacteria. This bacteria is having a rigid cell wall. Bacteria has a rigid cell wall and they are divided into 4 types. Here are the diagrams of this bacteria, that is they are rod shaped is called as a bacilli, the spiral shape is called spirilla, the spear shape it is cocci, and comma shaped are the vibrio. So these are the names of the bacteria which are present in our surrounding. Now these bacteria are found everywhere. It is present in the air, generally it is present in the air. Now another group is fungi. This is the largest group of organism. Fungi, ये जो fungi है ये सबसे बड़ा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. It does not contain chlorophyll. It is not having chlorophyll present in it. And the fungi are yeast cell. Examples are yeast, penicillin and rhizopus. Now this yeast, you know this yeast is the microorganisms which we are using for the preparation of bread, butter and cakes and pastries. Now this is reproducing by binary fission. ये जो है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं. प्रोटोजुआ,
Protozoa are single celled and animal like. These are showing the characters like that of the animals. ये एनिमल्स होते मीन्स एनिमल्स जैसे कैरेक्टर ये शो करते हैं. इट शोज मूवमेंट, इट शोज रिप्रोडक्शन, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामेशियम. Amoeba and paramecium, these are unicellular cells, means these cells are made up of a single cell. They live in single, whereas bacteria as well as fungi, they are seen in clusters. ये ग्रुप में रहते हैं. बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं, और ये फंगाई प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जनरली सिंगली पाए जाते हैं. मीन्स दे आर seen in the singly, means they move singly, they are not living in the colonies. Now these amoeba and paramecium are generally present in water. ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं. Generally in the pond water. Pond water, if you take a sample of pond water and with the help of microscope, if you make a slide, अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से उस पानी का पॉन्ड वाटर का अगर एक स्लाइड बनाओगे और उस स्लाइड को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पता चलेगा, यू विल सी अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग ऑन दैट स्लाइड. दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर. नाउ द अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज algae. These algae are large and this is also like a fungi, it is a large group of microorganisms. This is a large group of microorganisms which are present in plant like organisms. These are not actually the plants, but they are having the process means the presence of chlorophyll in it. They do not have the parts like plants, that is roots, leaves and stem, fruit, flowers, that are not there, but the presence of chlorophyll. The presence of chlorophyll, this chlorophyll is enabling, or this because with the help of chlorophyll it helps in production of food by the process of photosynthesis. Then the another group of microorganism is viruses. They are not actually the group of, means it is not like all the other four, but it can divide or it can reproduce only when it enters into the animal or in the person's cell. जब वो किसी person के cell में जाएगा उसके बाद ही उसका reproduction शुरू हो सकता है. So the example of virus is the presence, or in the common cold, we get the common cold, and during that is the virus which is entering into our it. When it enters in our cell, जब वो हमारे host के cell में जाएगा उसके बाद ही वो reproduce हो सकता है. And in this way this is the major groups of organisms. Now let us study about the harmful and useful microorganisms. Now we will study about the useful microorganisms. Now we have studied the yeast cell, household in household means घर में हम कहाँ पर microorganisms जो है, where we are going to use the microorganisms. In at home we are making curd. आपने देखा होगा मम्मी जब दही जमा रहे होते हैं तो कुनकुने दूध में एक चम्मच भर के दही मिलाया जाता है. एक चम्मच भर के दही कुनकुने दूध में मिलाया जाता है और उसे ढक कर रख दिया जाता है. After some hours, after few hours, that is after 5 to 6 hours, that milk is converted into curd. That is, in a curd there are the bacteria. There are the lactobacillus bacteria. कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध का कन्वर्जन कर्ड में करते हैं. दैट इज द यूजफुल बैक्टीरिया. दे आर द यूजफुल बैक्टीरिया विच आर हेल्पिंग इन they are useful bacteria which gives us nutrients. Then the another type of bacteria is in the preparation of bread, biscuits, cakes, pastries,
we are using, or you might have heard about how the dough is made for making the cakes as well as the bread. Now the flour is taken. In flour some sugar is added and some means 1 or 2 tablespoons of yeast powder is added into it. उस आटे में, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने में हम नमक, तेल यूज़ करते हैं, डालते हैं, तो ये जो ब्रेड का आटा होता है वो लगाने के लिए मैदा या व्हीट फ्लोर, उसमें मैदा या व्हीट फ्लोर लिया जाता है और मैदा और व्हीट फ्लोर में वहाँ उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है, 1 चम्मच ईस्ट पाउडर डाला जाता है और उस मटेरियल को कुछ घंटों के लिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स उसे ढक कर रख दिया जाता है। 4 से 5 घंटे में क्या होता है, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मल्टीपल उनका होता है, मीन्स इट रिप्रोड्यूसेस। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो 20 मिनट में, विदिन 20 मिनट्स इट रिप्रोड्यूसेस, 20 मिनट में वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और उसके बाद ये 4-5 घंटे में मल्टीपल रिप्रोडक्शन उनका हो जाता है और इसलिए मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ द ईस्ट इनटू दिस सेल्स एंड दे रिप्रोड्यूस एंड विद द बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी बेक दैट डव, वो जो डव होता है वो थोड़ा सा उभर कर आ जाता है, मीन्स उसका साइज़ जो होता है वो फर्मेंट हो जाता है। एक लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं फर्मेंट हो जाता है। आपने देखा होगा इडली और डोसा जब हम बनाते हैं, इडली और डोसा का मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो उसे मिक्स करने के बाद रात भर के लिए पूरे रात भर उसे ढक कर रख दिया जाता है। जब आप सुबह उसे खोलोगे, व्हेन यू ओपन द कंटेनर यू विल सी दैट द डव हैज़ रेज्ड अप, दैट इज़ फ्लफी, that is the dough has raised up and the size has increased because in that the bacteria has reproduced within few hours में उसमें बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हो जाता है and that dough by which we are making the idlis and dosas, they are very nutritive because they are made in this we are using the useful bacteria और इसमें हम useful bacteria का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स इन अ हाउस होल्ड ऑल्सो वी आर एबल टू कंज्यूम दिस यूजफुल बैक्टीरियाज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ विद द हेल्प ऑफ मिल्क। आफ्टर जब हम रोज़ दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के बाद उस पर मलाई आ जाती है, मलाई आने के बाद वी आर द क्रीम ऑफ द मिल्क we are collecting every day. The creamy layer is collected and it is stored in a container. उसे एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है और जो कंटेनर जब भर जाता है तब हम उसे मिक्सर में चला करके मिक्स करके we are obtaining the butter. We are getting the butter and in this way that preparation of cheese is also the production of bacteria. The production of the bacteria multiplies in that creamy layer. उस creamy layer में multiple of bacteria बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह से in house we are able to multiply the bacteria और घर में हम bacteria को इकट्ठा करते हैं और उस bacteria का हम use कर सकते हैं। They are useful bacteria and that is why we are using the household items, that is curd, dough and cheese. Curd, dough and cheese are the household articles which we are using for at our home. Now commercial use. Commercial use means by selling this we get the money. That is by using, where do we use this microorganism? For the commercial purpose. Commercial purpose, it is used in the production of alcohol and wine. Alcohol and wine के प्रोडक्शन में हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। अल्कोहल एंड वाइन इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय द यूज़ ऑफ और बाय यूजिंग द fruits juice as well as the rice and wheat and barley is soaked in water for few days,
5-6 days they are soaked in water, and in that 5-6 days number of microorganisms multiply in it. उसमें सोक करने के बाद उसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के कारण उसमें जो होते हैं वो development of the microorganisms takes place and it forms the, we are able to get the alcohol and wine. Now what is fermentation? Fermentation, it is used in the fermentation, that is in the cakes and pastries, biscuits, डोसास, खमन, फॉर दिस इज़ द फर्मेंटेशन. इसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन में वो जो ईस्ट पाउडर डालकर उस डव को फुलाया जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इन लेस अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. मीन्स थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेच सकते हैं. Now in this we have to see one just for the commercial use. Let us have small activity. I will just explain you one activity. In this you have to take a glass beaker, of about 500 ml. एक 500 ml का ग्लास बीकर आपको लेना है, उसमें 3/4 आपको पानी लेना है. Take filled it 3/4 with the water. Add 2-3 spoons of sugar into it. उसमें आपको 2-3 चम्मच शक्कर डाल के मिक्स करना है, एंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ ईस्ट, उसमें 1/2 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करके उसे ढक देना है. आफ्टर 2-3 आवर्स आपको उसे 2-3 घंटे बाद उसको ढक्कन को निकाल कर आप देखोगे, यू विल गेट अ फाउल स्मेल. उसमें आपको अजीब सी स्मेल आएगी. दैट इज़ बिकॉज इन दैट वाटर बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द ईस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ डेवलप्ड. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड हो गए हैं, और उस डेवलप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उस बीकर में से आपको फाउल स्मेल आ रहा है. जनरली आप शुगर का सॉल्यूशन, इफ़ यू आर मेक द शुगर सॉल्यूशन, यू विल नॉट बी एबल और यू विल नॉट सी दैट दीज इट विल नॉट स्मेल. उसका स्मेल नहीं आएगा अगर शुगर सॉल्यूशन है तो, पर अगर उसमें आपने ईस्ट ऐड किया है तो उसका फाउल स्मेल आपको आएगा. So now what is the medicinal use? Now in this we can say that these microorganisms, when we have the food is stale, मतलब बासी खाना हो जाता है तो उसमें अजीब सी गंध आपको आती है. We are getting a foul smell into the food generally during the summer season. जनरली गर्मी के दिनों में सुबह की सब्जी बनाई हुई दोपहर तक या शाम तक ख़राब हो जाती है. उसका आपको स्मेल आने लगता है, खटास स्मेल आती है, और उसमें बबल्स आपको दिखाई देते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है. दीज आर द सिम्टम्स टू शो अस दैट फूड कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक तो उसका स्मेल, देन द बबल्स, एयर बबल्स, एज वेल एज द कलर चेंजेस. तो इससे हमें पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बैक्टीरिया हैज़ बीन टेकन प्लेस. आपने देखा होगा कि जब भी पार्लर से या दूध वाले से हमारे यहाँ पर दूध आता है, तो जैसे ही आता है हम तुरंत उसे गर्म करने के लिए रखते हैं. अगर उसे गर्म उसी वक्त नहीं किया गया, तो क्या होगा? इट मे स्पॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इट. और अगर उसे गर्म नहीं किया गया तो क्या होगा? वो दूध जो है फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और इट विल बी ऑफ नो यूज़. तो जैसे ही दूध आता है पहले हम उसे पूरा दूध गर्म करते हैं. आपने देखा होगा कि दूध जब गर्म किया है तो आपको भी समझ में आता है कि कब तक दूध उबालना है. जब तक तपेली के ऊपर तक नहीं आ जाता तब तक आपको उसे गर्म करना है. केवल 5 मिनट रख दिया, 2 मिनट रख दिया, मम्मी दूध गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है. वी हैव टू बॉयल इट. जब वो ऊपर आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम जो होती है वो बंद करते हैं, बिकॉज इट शुड बी बॉइल्ड. दूध जो होता है वो बॉईल करना है, क्योंकि बॉईल करने के बाद ही उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं. एंड व्हेन दे डाई मीन्स आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर्म्स द क्रीमी लेयर. और वो जब व्हेन दे आर किल्ड, जब वो
बॉयल होने के बाद जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, उसके बाद वो उसको क्रीमी लेयर उसका तैयार हो जाता है, एंड दैट इज़ द क्रीम विच वी आर कलेक्टिंग एवरी डे. मीन्स वी आर कलेक्टिंग all the microorganisms present in the milk every day for the production of cheese and butter. So in this way, this is the household and commercial. Now let us study about the medicinal use of the microorganisms. In medicinal use, antibodies. Now what do you mean by antibodies? उसको समझाने से पहले, क्वेश्चन में क्या दिया उससे समझने से पहले एक अच्छी सी चीज़ आप ये समझो, अगर कोई वायर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R हो और वो सर्कल के रूप में बेंट हो, तो उसके दो डायमीटर्स के बीच में अगर हमने दो पॉइंट बना लिए A और B, ऐसे दो पॉइंट ले लिए और पूछे कि अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल R था, तो ऊपर वाले टुकड़े का कितना होगा R/2, नीचे वाले का कितना होगा R/2, क्योंकि आधा आधा टूट जाएगा. ठीक है, अब दोनों पैरेलल में लगे हैं, R/2 ऊपर R/2 नीचे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, हमेशा ध्यान रखना R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4. इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो नीट में पिछले 30 सालों में इसमें के 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको हेल्प करेंगे. अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वायर इसका रेजिस्टेंस सीधे सीधे नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये जो रेडियस है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओके, और इसका जो वायर बना हुआ है उसका पर मीटर रेजिस्टेंस कितना है 12 मीटर. तो आप पहले ये पता करो कि वायर कितने मीटर में बना होगा, इसकी लंबाई कितने मीटर होगी, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो उसका नेट रेजिस्टेंस पता चलेगा. तो कैसे पता करोगे, पहले ये वायर की रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले इसकी लंबाई निकालना पड़ेगी, लेंथ किसके बराबर होती है सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, ये हुआ उसका सरकमफेरेंस. परंतु अपने को सरकमफेरेंस के साथ साथ क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, कैंसिल कर ले अपन यहाँ से, कितना हो जाएगा 10, तो π/5 कितना हुआ π/5, और इनटू ये इतने मीटर है और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया. फिर क्लियर कर दूँ, सरकमफेरेंस क्या बता रही, पूरे वायर की लंबाई, और 1 मीटर के कितना रेजिस्टेंस है 12, तो फिर मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया. अब इसको यहाँ रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4. अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन. π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4. अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 पाई, और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन. π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4. अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 पाई, और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन. π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4. अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 पाई, और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन. π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4. अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 पाई, और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन. π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4.
आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 5 × 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई
ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाई 5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाई 5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाई 5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाई 5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4। आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बाई 5 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम। बाई 5 ओम, रेजिस्टेंस We'll start with the common cold flu is nothing but the diseases which is caused, the symptoms of common cold flu that is caused by the harmful bacteria and it causes the tuberculosis. Now what is communicable and non-communicable diseases? Communicable disease which is transfers from an infected person to a healthy person. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिजीजेस, दैट इज़ चिकन पॉक्स एंड रिंगवर्म। चिकन पॉक्स आपको पता होगा कि जब भी आपको चिकन पॉक्स होता है आपको स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, 10 दिन की छुट्टी, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। एक को होता है तो दूसरे को भी हो जाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, मीन्स इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. That is why if you have a chicken pox you get the holiday or leave from the school and you are taking rest at home. Now water we drink, food we eat. अगर contaminated water आप पी रहे हो, अगर कभी आपने पॉन्ड वाला या गंदा पानी पी लिया हो, कहीं किसी इन्फेक्टेड वाटर आपने जो सेफ वाटर नहीं है वो पी लिया हो, या तो जो ऐसा खाना खाया होगा जिसमें कवर नहीं किया है, अनकवर्ड कहीं ठेले से आपने कुछ समोसा कचौरी खा ली है, पानी पूरी खा ली है जिसको कवर्ड नहीं किया था, अनकवर्ड फूड
and unsafe water if you drink, you will get the diseases like cholera and typhoid, that are the waterborne diseases, that is caused due to the help of water. Now some of the animals, some of the insects as well as animals are the carriers of the diseases. The mosquitoes, the house flies, मच्छर होते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉस्किटो नेट लगाते हैं, मच्छर भगाने के लिए हम ऑल आउट लगाते हैं, क्योंकि उस मच्छर अगर हमें काट रहा है तो क्या होगा, वी विल गेट द डिजीज कॉल्ड एज अ मलेरिया. अगर आपको मच्छर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने काट लिया, यू विल गेट द डिजीज कॉल्ड एज अ मलेरिया. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको काटने से, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काटने के द्वारा आपके ब्लड में वो इंजेक्ट करता है, तो आपके ब्लड में वो डेवलप होता है. सो यू गेट द डिजीज कॉल्ड एज अ मलेरिया. देन in the same way in the plants also there is the animals harmful microorganisms which harms the plants, that is citrus canker, that is the bacteria which infects, rust and wheat, that is caused due to the attack of fungi on the wheat. There is yellow vein mosaic of भिंडी. भिंडी के ऊपर भी वायरस का अटैक होगा तो भिंडी भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में means it will get infected by the microorganisms. Now here is the table which shows you the different disease and the which group of microorganisms infect it. Tuberculosis is infected by the bacteria and that bacteria is transmitted through the air. Measles is carried through the virus and it is also transmitted by the air as well as by the water. Chickenpox is transmitted through the virus and it is through the air or contact with the person. Polio, that is virus as well as air and water. Cholera, that is bacteria and it is spread through the water as well as the infected food or contaminated food. Hepatitis B, it is caused by the virus and it is transmitted through the water. Typhoid is carried by the bacteria and through the contaminated water. Malaria by the protozoa and that is the mosquito. That is mosquito is the carrier of these diseases. So in this way today we have studied about useful and harmful microorganisms as well as harmful microorganisms which attack on the plants as well as the different diseases which are caused by these microorganisms. Thank you.